प्रैक्टिस किया सर, जो मैं आपको बताया था हाँ अलग अलग भेजा है, मेल में भेजा है। मेल में भेजा आपने? ओके ओके, जस्ट हम लोग एक बार वो देख लेते हैं। राइट, तो ये आपने जैसे बताया था शटर स्पीड जो हमें थी, और हम लोगों ने ये अपर्चर जो उस पहले से नो नो सी फ्रॉम द फर्स्ट क्लास ओके मोड सेलेक्टर से शुरू किया मैं, ओके। बट बीच में कुछ पिक्चर आपको बहुत हो गया ना, हम्म। मोड सेलेक्टर में एक एक में रख के शॉट किया, बड़ा। कैसे ऑटो यू नो ऑटो मोड विदाउट फ्लैश ओके, राइट। राइट, then landscape, then moving object, macro, moving object, then night mode, MASP, like that. One ओके। picture I made. After that, I kept in A, okay, and varied the shutter speed, the um, focus, okay. ओके। Uh, then once again I kept in yes and change the shutter speed and click some photos. But I think, yeah, I kept one single object and around 3 feet from the object. ओके, तो ये पहले जो I think it इमेज। didn't come out in a very clear way. Tomorrow I will do that. I श्योर will श्योर। because today the memory was full. I had to go back and delete. Then the राइट। battery went off. Then I had to charge it and all because I'm not used to. नो सर, नो So प्रॉब्लम, in नो। between time lag gaya. Okay, ठीक है ठीक है। my memory is full. Today I will try to sit and delete unwanted one, old ones. श्योर Okay, श्योर। so that I have enough space. This is ओके। the object I kept. राइट। Okay, you could तो see changing. हम्म, सो यहाँ But पर। I mounted on a tripod like this. ओके You कूल, सो दैट्स द know. रीजन your focus when your shutter speed is too much less, then also your focus is not that वो फोकस आपका प्रॉपरली क्लिक हुआ है, दैट फोकस इज बी हाँ, नॉट मिस। सो दिस इज द फर्स्ट इमेज। सो यहाँ पर आपका कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो प्रॉपरली क्लिक हुआ है, एंड शार्पनेस यू कैन सी। तो ये क्यों yeah, होता है correct. कि जब आप शार्पनेस वगैरह देखोगे, आप जब अपर्चर लेवल ज्यादा रखते हो तो आपका इमेज पूरा शार्प होता है। सो दैट्स द Hmm. रीजन वी आर एबल टू सी कि मेरा ये जो चेयर है, चेयर का पूरा जो साइड वाला पोर्शन है वो, प्लस मेरा ये जो फ्लावर पार्ट है, देन अगेन देयर इज अ बुद्धा स्टैचू इज देयर। सो दैट इज एंटायर Yeah, that is इमेज why purposefully I kept a colorful at the back and राइट। a one color image in the front, just to एग्जैक्टली। make sure. Hmm. एंड अगेन जो लाइट सोर्स है आपका, लाइट सोर्स फ्रंट में है शायद, क्योंकि जब अपने ये ब्लैक कलर पे लाइट मेरा रिफ्लेक्ट हुआ है ना, सो आई कैन सी Hmm. द लाइट डायरेक्शन इज फ्रॉम दिस बैक साइड। सो जब आप इसको क्लिक कर रहे हो तो मुझे पता भी चलता है कि मेरा लाइट सोर्स कहाँ पर है, बिकॉज ये लाइट का रिफ्लेक्शन जो है ना ब्लैक No, कलर के। no, the light is falling on the object. राइट राइट, See, my ऊपर window साइड। is on this side. ओके, so that's the reason the entire image is looking so much nice. And Yes, again, yes. here the white double, sorry, when you change the mode, so automatically camera does settings, और उसकी वजह से हमें थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंस होता है। सो वी विल टॉक अबाउट कि हमें कर बार कौन से सेटिंग्स यूज करनी है, और उसमें जब आप आज का लेक्चर हम लोग अटेंड करेंगे, बिकॉज एज ऑफ नाउ वी सॉ वन इज योर अपर्चर, second that is our shutter speed, and now we will study the ISO. So what is exactly ISO means, and after studying all these three pillars of photography, then we will start to practice lots of images using this particular settings. तो अभी मैंने आपको जो बोला था वो अपर्चर मोड पे रखने के लिए कहा कैमरा, आपको मैंने शटर स्पीड पे करने के लिए कहा। सो नाउ ऑनवर्ड्स यू विल ऑलवेज प्रैक्टिस विद द मैनुअल मोड। तो एम मोड जो One है, more thing is earlier I didn't go through the class revision. Okay. Today morning I went to the revision for राइट class 1. Tomorrow I'll try to go through class 2 and 3 राइट सर, so that I know at least the aperture I will go through first. श्योर श्योर। Okay. Lenses I can go through later. I don't need that today. I will finish aperture and shutter speed first. Okay. Sure. Then tomorrow I will retake some of the pictures.
Okay. Definitely. First, I will not take hundreds of picture. I will take with few apertures and a few shutter speed so that I Mhm. can send you. Sure, Okay. sir. Sure, Uh, definitely. And my again, understanding is today is much better than yesterday. okay, okay. So again, the yesterday's lecture, now I'm editing your lecture. So this is your lecture which is getting encoded. So once Yeah. this software will encode that video, I will put on YouTube and I will share you Yeah. the link with you. Okay. Okay, sir. Okay. So now we will go ahead at which is our today's topic. That is most favorite topic of mine, which is ISO. So what is exactly the ISO means that we will study. So just as a revision, aperture which we saw, it means eye is there, and in that eye the like a human eye, so there is a one element in the lens which controls the light. Okay, aperture means one element is in the lens which controls the light. Then we saw the shutter speed, means the element which is attached to the sensor. और अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, इट इज कॉल्ड एज एन ISO. सो ये ISO एग्जैक्टली होता क्या है एंड इसका यूज हमें किस तरीके से करना है, तो वो हम लोग एक बार देखेंगे. मैं जस्ट आपका नोट्स एक बार ओपन कर लेता हूँ. ओके, ओके. सो ISO मतलब एग्जैक्टली क्या, तो उसका एक नॉर्मल फुल फॉर्म जैसे कहा जाता है, कहीं पे यूज नहीं होता, बट वी शुड नो दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड and ISO, what exactly it denotes. So it always denotes that how sensitive the image sensor to the amount of light present. तो जब मुझे मेरे सेंसर को लाइट हिट करेगा, सो इन एट दैट टाइम जो मुझे इमेज कैप्चर कर रहा हूँ मैं, तो वो लाइट कितना हिट कर रहा है, तो उसका एक मेजरमेंट होता है. जैसे हम लोगों ने चेक किया था कि अपर्चर का मेजरमेंट वैल्यू हमेशा हम लोग काउंट करते हैं एज अ एफ स्टॉप. In shutter speed, we studied that always it is captured in 1 by, means 1 second of the part. In ISO, we capture that which measures the settings like 100, 200, 400. तो यहाँ पर जो हम लोग उसको डिनोट करेंगे वो यूजिंग द नंबर्स. तो एक नंबर्स होते हैं जो उसको हम लोग ध्यान में रखना है. हायर द ISO means the more sensitive image sensor which will result in a grainy picture. मतलब जितना मेरा ISO हाई रहेगा, जितना मेरा वैल्यू हाई रहेगा, तो उतना मेरा जो इमेज है वो ब्लर होगा. ब्लर इन द सेंस, कल का अगर हम लोग इमेज ओपन करेंगे तो कल आप देख पा रहे थे कि लाइट मेरे फेस पे ज्यादा नहीं था, सो दैट्स द रीजन यू वेर एबल टू सी लाइक ग्रेनी काइंड ऑफ इमेजेस. तो उसमें ग्रेन्स होते हैं जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है नॉइज. तो इमेज में नॉइज क्यों प्रेजेंट होता है, अगर मान लीजिए जैसे अभी द रेन इज ऑलरेडी स्टॉप एंड द लाइट इज गेटिंग फॉलन ऑन माई फेस, सो इन दैट केस इस सिचुएशन में इनफ लाइट अवेलेबल है, तो जो मेरी इमेज रिकॉर्डेड हो रही है वो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है एज कंपैरेटिव कल का जो सिचुएशन था. तो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में हमें समझना है कि एग्जैक्टली ISO क्या होता है, तो अगर मैं कोई लो लाइट सिचुएशन में क्लिक कर रहा हूँ, लो लाइट सिचुएशन में मैंने कैमरा लिया जहाँ पर मेरा लाइट बहुत कम है, और वहां पर जब मैं शूट कर रहा हूँ, तो बट ऑब्वियसली मेरा लेंस का एक लिमिट है, तो उस लेंस के लिमिट के बियॉन्ड में जा नहीं सकता. तो मैंने क्या किया, लेंस का जो मैक्सिमम लिमिट है उसको मैंने अचीव कर लिया, मतलब मैंने अपर्चर बहुत छोटा कर दिया. स्मॉलर द नंबर मींस द लाइट इज कमिंग मच फास्टर एंड मच बिगर इन योर लेंस, तो मेरे लेंस से लाइट आएगा. नाउ अगेन मैंने शटर स्पीड स्लो कर दिया, तो उसमें भी मेरा लाइट ज्यादा आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका लिमिट है. तो इन द केस कि मेरे जो ये 3 अलग अलग पिलर्स है, शटर स्पीड एंड ISO दोनों मैंने कंट्रोल किए, सॉरी शटर स्पीड एंड अपर्चर वो मैंने कंट्रोल किया. और अभी कभी भी जब मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरा इमेज और डार्कर शो कर रहा है, तो वो मुझे अगर उस इमेज में लाइट फिलअप करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल इंक्रीज द ISO नंबर. तो ISO मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा. ISO हमेशा स्टार्ट फ्रॉम 50, देन 100, देन 200, देन 400, 800, देन 1000, देन अगेन योर 1600, 3200, 6400 एंड 12800. तो जो हायर एंड के रेजोल्यूशन वाले कैमराज है उसमें ISO लेवल बहुत ज्यादा रहेगा. मतलब अगर मैं एकदम लो लाइट सिचुएशन में भी ट्राई कर रहा हूँ कैप्चर करना एकदम प्रोफेशनल कैमरा के साथ में, तो मुझे जो इमेज है वो अच्छा मिलेगा, उसमें उतने ग्रेन्स नहीं होंगे. तो हमें क्या यहाँ पे ध्यान में रखना है, सिर्फ ISO एक मेजरमेंट है. ISO इज द वन एलिमेंट विच ट्राई
टू फिल अप द लाइट इन योर इमेज। तो मेरे इमेज में अगर लाइट कम है, मुझे अगर लाइट मेरे इमेज में इंक्रीज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, आईएसओ का जो नंबर है मैं नंबर इंक्रीज करते जाऊंगा। मेरी लाइट बहुत ज्यादा है इमेज में, तो मैं क्या करूंगा, आईएसओ का जो नंबर है वो मैं कम करते जाऊंगा। राइट। तो इस what exactly it means, like higher ISO means more sensitive image sensor which will be resulting as a grainy image, like grains मुझे इमेज में शो करेंगे। lower ISO means less sensitive sensor। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो इमेज है बहुत शार्प शो करेगा। लाइक कल जो आज जो आपने मुझे इमेजेस भेजे हैं, जैसे अगर हम लोग आपका जो मेल ओपन करते हैं तो उसमें जो आपने मुझे इमेज भेजा है ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा तो मुझे इमेज में थोड़ा सा ग्रेन्स दिखाई देंगे। इस टाइप में एकदम कम अमाउंट में है, लेकिन थोड़े फार ग्रेन्स है एज कंपेरेटिव। जो मैं फर्स्ट इमेज अगर ओपन करूँ आपका, तो फर्स्ट इमेज में कैमरा ने जब ये इमेज शूट किया तो इसमें जो ग्रेन्स है बहुत कम है और शार्पनेस बहुत ज्यादा है। इसमें अभी देख सकते हो आपकी थोड़ा सा ब्लर वगैरह हुआ है। एंड अगेन आई विल चेक हियर। राइट। तो इस इमेज को अगर मैं देखता हूँ तो इसमें मेरी सारी की सारी चीजें मुझे शार्प दिखाई दे रही है और इमेज पे मुझे ग्रेन नहीं है, मतलब इमेज में कहीं पर मुझे ब्लैक सॉरी व्हाइट कलर के डॉट्स शो नहीं करते। तो ये जो है ये एकदम शार्प इमेज है। ये कब होता है, जब मेरा आईएसओ कैमरा बहुत कम लगता है। जितना मेरा आईएसओ कम रहेगा उतना मेरा इमेज शार्प रहेगा। जितना मेरा आईएसओ ज्यादा रहेगा उतना मेरा इमेज जो ग्रेनी होगा। राइट। तो हम लोग कल की तरह इसको भी एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। देयर आर सम ऑडियो वीडियोस व्हिच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मच बेटर वे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि व्हाट एग्जैक्टली इट मींस एलिमेंट व्हिच प्रोवाइड्स यू द सेंसिटिव इमेज सेंसर और लेस सेंसिटिव इमेज सेंसर। इसमें दो तरीके, हायर द आईएसओ मींस मेरी इमेज में ग्रेन्स ज्यादा होंगे, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी इमेज में एक्स्ट्रा लाइट फिलअप कर रहा हूँ बिकॉज मेरी इमेज डार्क है। अगर लोअर आईएसओ मींस आपका जो आईएसओ है उसमें आपको जो इमेज मिलेगा वो बहुत शार्प मिलेगा। अभी इस केस में हम लोग देखेंगे, इमेज से हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे अभी यहाँ पर आईएसओ 200 है, तो आप देख सकते हो कि मेरा जो इमेज है वो शार्प शो कर रहा है। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ओके, नाउ यू आर एबल टू सी। ओके, तो जैसे ये इमेज आप देख पा रहे हो, ये जो पेंसिल का इमेज है, आईएसओ 100 जब मेरा है तो मेरी इमेजेस पूरी की पूरी शार्प है। जैसे जैसे मैं आईएसओ इंक्रीज करते जा रहा हूँ, इससे आप देख पाओगे कि मेरा जो इमेज है वो इमेज ब्लर होते जा रहा है। इमेज में व्हाइट कलर का कुछ डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं जिसको नॉइज कहते हैं, जिसको ग्रेनी टाइप कहते हैं। सो नाउ 100 इज द दैट लोअर पॉइंट ऑफ माय कैमरा। आई जंप टू 200, तो 200 में थोड़ा सा ग्रेन मुझे मिलने लगे। अगेन आई जंप विद द 400, तो उसमें और मेरा ग्रेन्स बढ़ जाएंगे। 800 में और ज्यादा है, 1600 में और ज्यादा है, 3200 में मेरा जो डिटेलिंग है इमेज का वो पूरा का पूरा मिस हो गया है। तो यहाँ पर जब मैं देख पा रहा हूँ तो ये एग्जैक्टली मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कि मेरा इमेज एग्जैक्टली क्या है। राइट। तो हमेशा में ध्यान में रखना है कि आईएसओ मेरा जितना कम रहेगा उतना मेरा इमेज शार्प रहेगा। तो व्हाट आई विल प्रेफर कि मैं कहाँ पर भी शूट कर रहा हूँ, मान लीजिए लो लाइट सिचुएशन में शूट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि आईएसओ हमेशा कम रखने की कोशिश करूंगा। बाकी की जो कमियां है वो मैं शटर स्पीड और मेरा अपर्चर उससे मैं फिलअप करूंगा। लाइक मेरा आईएसओ मैंने कम रखा, अभी मुझे इमेज तो बैलेंस करना है, तो इमेज बैलेंस में क्या करूंगा, मैं शटर स्पीड को थोड़ा और कम लेके जाऊंगा, मेरा अपर्चर को बढ़ा दूंगा। तो इन दैट केस आई विल बी एबल टू बैलेंस द इमेज। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरा आईएसओ 200 में मेरा जो इमेज है वो शार्प शो कर रहा है। जैसे जैसे मैं आईएसओ बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा जो इमेज है वो ग्रेन शो कर रहा है। तो अभी आपका कैमरा आपके पास है, राइट? अभी आप कैमरा ऑन कीजिए एंड गो टू योर मैनुअल मोड में जाइए, एम पर। ओके, सो जब आप एम पे जाओगे तो मैंने जो आपको कल बताया था कि आपके एलसीडी के ऊपर आपको कुछ स्क्रीन शो नंबर्स शो करेंगे। तो वो नंबर्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये
ऐसे आपको इमेज शो करेगा। अब ये जो इमेज है यहाँ पर आपको कुछ एक नंबर दिखाई दे रहा है, आईएसओ लिखा ठीक होगा है। और वो नंबर लिखा होगा। तो आपके अभी जो पॉइंट कैमरा थ्री, की, हाँ कितना लिखा है सर? एल पॉइंट थ्री, पॉइंट थ्री। 0.3? नहीं, आईएसओ के नीचे लिखा होगा कुछ। ISO हाँ, एल पॉइंट थ्री लिखा है। L.3। आईएसओ, एक मिनट, एल मतलब आपका जो है वो लार्ज है, ब्रैकेट में जो है वो मत पढ़िए, आईएसओ के नीचे कुछ लिखा होगा। आप कैमरा का जो शटर स्पीड है ना, जो हम लोग इमेज क्लिक करने के बटन टाइप करते हैं, तो वो इमेज बटन आप ओके। हाफ प्रेस कीजिए, तब आपका एलसीडी पे आपको कुछ नंबर शो होगा आईएसओ के नीचे, जो आप हाँ ISO का नीचे एल पॉइंट थ्री लिखा है, उसका ओके नीचे ऑटो लिखा है, हाँ 1 लिखा है, 1। ओके। ISO नंबर आप जो बोला 100 वो नहीं दिख रहा है। 100 200 ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है आपको? नहीं 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 नहीं। ओके ओके, कोई बात नहीं। हम लोग एक काम करेंगे, आपका कैमरा जो है आप अभी एक तो अपर्चर मोड पे स्विच कीजिए या फिर शटर स्पीड पे शूट कीजिए। एस जो मोड है ना उस पे स्विच कीजिए कैमरा अभी। अपर्चर मोड, ओके। ओके, जब आप अभी अपर्चर मोड पे गए तो आप जब एलसीडी देख रहे हो उसमें इस नंबर क्या शो कर रहा है, सेम नंबर शो कर रहा है या कुछ अलग ये शो कर रहा पहले ये तो फुल है, नहीं तो कुछ डिलीट करने का है, नहीं तो है? जो ये आपका मेमोरी कार्ड है ना, मेमोरी है। मेमोरी कार्ड आपका जो भर गया है, इसकी वजह से जो नंबर ऑफ इमेजेस आपको ब्रैकेट में एल दिख रहा है ना, एल मतलब आपका शूटिंग फॉर्मेट जेपैक फॉर्मेट पे है। आप जो कैमरा पे अभी क्लिक करोगे वो लार्ज फॉर्मेट पे क्लिक कर रहा है, और उसके ऊपर एक आईएसओ नंबर होता है, तो वो नंबर हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक आईएसओ का बटन होता है वो भी हम लोग देखेंगे, लाइक हियर। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे बटन है ना सर, वहां पर देखिए एक आईएसओ का बटन मेंशन किया गया था। है। हाँ, उसको प्रेस कीजिए, आईएसओ मैनुअल मोड में, मैनुअल मोड पे कैमरा स्विच कीजिए अभी। मैनुअल मोड में, हाँ, ओके अभी करेगा। आईएसओ बटन प्रेस कीजिए। किया, ठीक है, अभी आपको बट मेमोरी फुल रहने से कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कैमरा की ओके, सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो। हाँ वो ठीक है, मैं किया, अभी हाँ मैनुअल में डाला, जी, ISO क्लिक किया, हाँ अभी सिर्फ L.3 ऑटो 0 ऐसा। ऑटो 0। ओके, आप मुझे मोबाइल से उस स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन है एलसीडी, उसका हाँ अभी फोटो कर क्लिक रहा करके, हूँ मैं, हाँ मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए। अभी कर। जी, तो हमें वो एक कंफ्यूजन जो अभी शो हो रहा है वहां पर, तो हम लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आपको शूटिंग स्क्रीन कैसे दिखाई दे रहा है सर? ये इस टाइप का दिखाई दे रहा है या फिर आपका जो इमेज है वो इमेज शो कर रहा है? भेजा, भेजा भेजा। ना? जी जी, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। ओके, आपका अभी ये जो आईएसओ L0.3 शो कर रहा है। अभी आपका जो ये मैंने आपको ब्रैकेट बोला था ना, जो आपका कार्ड भी फुल हो गया है सर, इसकी वजह से हाँ वो आपको अलाउ नहीं करेगा। उसमें से एक या दो इमेजेस कोई भी आप डिलीट कर दीजिए, एक दो इमेजेस। ओके, वो अभी कौन सा मोड में कोई जाने का है? कोई भी मोड पे रहेगा कैमरा चलेगा, सिर्फ अपना प्लेबैक का जो व्यू, बटन है ना, मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड में प्लेबैक का ओके। एक बटन है, वो बटन प्रेस कीजिए तो आपको इमेज शो करेगा। नीचे आपका डिलीट का एक बटन है, वो डिलीट का बटन आप प्रेस करोगे तो आपका जो इमेज है वो डिलीट हो जाएगा। एक दो इमेजेस हमें डिलीट करने पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है कई बार ना, किया, राइट, अभी एलसीडी मोड पे जाइए और अभी आपको भी सेम चीज शो कर रहा है एल, या फिर आपको कुछ नंबर शो कर रहे हैं? L.3 नो, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। वही है, नहीं
ओके, ये जो ब्रैकेट में आपको 0 दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब अभी आप हाँ। कैमरा में एक भी इमेज क्लिक नहीं कर सकते। तो अभी नंबर कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है या 0 दिखा रहा है? 3 ब्रैकेट के अंदर 3 नंबर दिखा रहा है। हाँ। ओके, और ऊपर ये फुल जो शो कर रहा था वैसे ही शो कर रहा है अभी भी? यस यस यस। हाँ, मतलब आपका जो मेमोरी कार्ड है उसमें और हमें स्पेस रिलीज करनी पड़ेगी, तो मुझे कैमरा अलाउ करेगा शूट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर ना मेमोरी कार्ड अभी भी फुल है मेरा, सो दैट्स द रीजन आई कांट क्लिक द इमेज। तो वो मैं अगर करने भी जाऊँ तो मुझे अलाउ नहीं करेगा। तो वो आप एक दो इमेजेस जब डिलीट करोगे ना, तो आपको यहाँ पर जो L0.3 शो कर रहा है ना, यहाँ पर आपको नंबर शो करेगा 100 या फिर 200 या फिर 400, वो हमें क्लिक करना है। पॉसिबल हो रहा है तो और एक दो बार हम लोग एक दो इमेजेस डिलीट करके देखेंगे, उसके बाद आपका आईएसओ नंबर हमें पता चलेगा। तो आपका जो स्क्रीन है ना इस टाइप में शो करेगा, जहां पर आप आईएसओ का एक नंबर जो है वो नंबर देख पाओगे। एनफ किया, डन डिलीटिंग। डिलीट किया आपने? अभी सेम नंबर शो कर रहा है या फिर ना आप नंबर देख पा रहे हो? अभी आप कैमरा मैनुअल मोड पे डालिए। 21 मैनुअल मोड में है। हाँ, ब्रैकेट में 21 दिखा रहा है। 21 मतलब आईएसओ L.3 ओनली दिखा रहा है। L.3 शो कर रहा है। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये वीडियो हम लोग आईएसओ अभी 200 दिखा रहा है। 200 राइट। तो अभी आपका जब मेमोरी रिलीज हुआ तो आप जो 21 बोल रहे हो ना, तो आप अभी कैमरा में ब्रैकेट में जो नंबर शो कर रहा है which indicates your remaining images which you can click on your memory card, तो वो आप 20-22 इमेजेस अभी क्लिक कर सकते हो। एंड नाउ द ISO which is showing as a 200, तो आपका कैमरा का जो ISO 200 पे अभी स्टेबल है। आप उसको ISO का बटन प्रेस कीजिए, ऊपर जो स्क्रोलिंग डायल है, स्क्रोलिंग डायल से जब आप यूज करोगे क्लॉकवाइज, जब उसको आप घुमाओगे तो आपका नंबर आपको इंक्रीज होगा। कौन सा बटन? जो स्क्रोलिंग बटन है ना आपके कैमरा के बैक साइड में, देखिए हम लोग अपर्चर वगैरह, हाँ राइट, वो स्क्रोलिंग बटन जब आप यूज करोगे ना, स्क्रॉल करोगे, तो आपका जो नंबर है वो नंबर इंक्रीज होगा और नंबर डिक्रीज होगा जब मैं उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब उसको मूव करूंगा। राइट, नंबर इंक्रीज हो रहा है? नहीं, एक मिनट मैं ट्राई कर रहा हूं। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। हाँ, अभी हो रहा है। ISO 640, 450, बराबर, 200. ओके राइट। Once again, the other direction, if I go 640, 400, 800. ओके, Then ISO LOS 0.3 आ गया। 0.3। उसके तो बाद जो 800 का बाद अभी घुमाने से LO 0.3 आ गया। 0.3 आ गया, ओके। तो अभी आप एक काम कीजिए, कैमरा आपका M मोड में है राइट? हाँ, M मोड में है। M मोड में है। आपका जो ISO है ना, आप अभी 800 पे क्लिक कीजिए, 800 पे लेकर आइए स्क्रॉलिंग करके। ठीक है, और एक इमेज क्लिक कीजिए, कोई भी एक बाजू वाला जो सब्जेक्ट वगैरह होगा, एक इमेज क्लिक कीजिए। 800 राइट, 800 में अपने कैमरा 800 में है। हाँ M में है जी, ओके। क्लिक किया। और प्रीव्यू बटन प्रेस कीजिए, प्रीव्यू, और नीचे जो लास्ट बटन था जूम का, मैंने आपको बोला था जूम का एक आइकॉन है उस लास्ट नंबर प्रीव्यू के नीचे, प्रीव्यू का नीचे जूम करके एक बटन है, वो जूम का बटन प्रेस कीजिए तो आपका इमेज जूम होगा। तो जो आपने अभी इमेज लिया ना, वो इमेज आपको उसमें थोड़ा सा डॉट्स दिखाई देंगे, ग्रेनी टाइप का इमेज शो करेगा। Now all the details are coming. If I want to go to the image, how do you do? जी, वो shutter speed, ISO, everything it is showing. राइट। इमेज आपका इमेज प्रीव्यू का बटन जो है ना हमने देखा था, वो इमेज प्रीव्यू का बटन जब मैं क्लिक करूंगा, मालूम है मेरे को, जी जी, उसमें फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है। फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है, ओके। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो इन्फो का एक बटन है,
हाँ? इन्फो लेफ्ट हैंड साइड में इन्फो का एक बटन है डाउन में, कैमरा के डाउन हाँ, में, ठीक है, आ उसको गया, प्रेस कीजिए। किया। हाँ, अभी फुल स्क्रीन शो कर रहा है हाँ, फुल स्क्रीन कर रहा है। बराबर। तो ये इंफॉर्मेशन का बटन प्रेस होने की वजह से मैंने आपको कहा था कि जब मैं कोई इमेज क्लिक करता हूँ उसका मुझे ये इंफॉर्मेशन मालूम करना है तो मैं इन्फो का बटन क्लिक करता हूँ। तो आपका वो ऑलरेडी क्लिक था, इसकी वजह से कैमरा में फुल स्क्रीन पे इमेज शो नहीं हो पा रहा था। तो अभी आप जब इंफॉर्मेशन का बटन फिर से प्रेस करोगे, कैमरा का पूरा एलसीडी जो है उस पर आपका इमेज शो करेगा। एंड नाउ व्हेन यू आर जूमिंग इन तो आपको थोड़ा सा ग्रेन उसमें शो करेगा। No, the picture is not coming in the full screen yet. पिक्चर So इज ओके ओके something happened. I don't know what the heck it is. Some other button is pressed maybe. कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, जो अभी एक इमेज आपने क्लिक किया था राइट? Yeah. ओके, तो फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान में रखिए सर कि जो हमें आईएसओ है, मैं जब इंक्रीज करूंगा तो मेरा इमेज ग्रेन हो जाएगा। एंड नाउ जब हमारा आज का असाइनमेंट आपका यही होगा कि आपको 100 पे एक इमेज लेना है, 400 पे एक लेना है, 800 पे। साइमल्टेनियसली आपको ध्यान में रखना है शटर स्पीड और आपका एपर्चर, वो भी हम मैनुअल मोड पे करोगे। मैनुअल मोड, राइट, मैनुअल मोड में आपको जाना है। उसके बाद शटर स्पीड आपका रखिए, नाइट में जब आप शूट करोगे तो स्टेबल सरफेस पे कोई भी शटर स्पीड रखना 1/60 या थोड़ा 1/100 या उससे स्लो। अपर्चर आप f4 पे रख दीजिएगा। जब आपका लेंस पूरा जूम आउट है तब आप f4 पे अपर्चर आपका मिनिमम रहेगा। और मेरा ISO 100 पे एक इमेज क्लिक करूंगा मैं, देन अगेन 400 पे एक इमेज क्लिक करूंगा और 800 पे एक इमेज क्लिक करूंगा। Okay, so I will be able to get the 3 different results and I will be able to find out that which one is the most grainiest image. तो उसमें ज्यादा ग्रेन्स है। ओके, अभी हम लोग एक वीडियो शो करेंगे, वीडियो देखेंगे, उसमें अंडरस्टैंड करेंगे ISO समझने के लिए। आपका जो वेबकैम है ना सर, वेबकैम थोड़ा सा नीचे कीजिए बिकॉज ना आपका जो फेस वगैरह पूरा आउट ऑफ द फ्रेम हो रहा है। राइट, बस बस ओके। सो नाउ जस्ट वी विल सी वन वीडियो। So it really happened before we said abracadabra. We hit 30,000 mark. Amazing day. Thank you, everyone. आप साउंड आपको सुनाई दे रहा है सर? ठीक है. Wonderful support. One more very important thing that we would like to share with you. We announced our giveaway when we... So ISO. Oh, sorry. It's not ISO. It's ISO. Do you want to know why it is not ISO and it is ISO? Well, there's a good story behind it. So please Google it, because if we start explaining, it would probably end up taking the whole video itself. So when I say auto ISO, you will say, elementary, my dear Watson. Not so. If we have to go by the comments that we are receiving, well, everyone wants to know everything about photography, including the most basic ones, like the ISO. So what is ISO? ISO indicates the sensitivity of the sensor. It's not a unit. It just indicates that higher the value, higher the sensitivity, and lower the value, lower the sensitivity. This, in combination with the other two elements in your exposure triangle, which is aperture, shutter speed, and ISO, a proper combination of all three together allows you to capture an image perfectly. All this while, the most popular way of, besides the manual mode, we used to use either an aperture priority auto, where you will select the aperture and let the camera select the shutter speed, or the shutter priority auto, where you will select the shutter speed and the camera select an appropriate aperture. In both cases, you are supposed to key in your favorite ISO or your choice of ISO, depending on the light condition that you're working in. Which means if you are working in brightly lit conditions like daylight or brightly lit situations like this, you will choose a lower ISO. A lower ISO also comes with an advantage of having less noise or better quality image. As you push the sensor to a higher ISO, of course, you will be able to receive the image or
record the image in lower lighting conditions, but it also comes with a disadvantage of sometimes introducing unwanted, undesired noise or grains in your image. Now that we have explained the basics, let's get into explaining what is auto ISO. This is probably the most appropriate mode for a photographer who is working in unpredictable lighting conditions at various corners of his field. Like, for example, a sports photographer, when he turns his camera towards the audience, there is one light. In the bench, there is one light, and out in the field, there is another kind of light, but still has to maintain a certain speed in his camera. To demonstrate it to you, I've taken the help of my friend Shikha to come and be our model today. Now, over to the setup. This is what we're going to do. Our model Shikha is waiting outside in the corridor, and it's brightly lit. And she's going to walk in to this relatively dimly lit interior. Let's start the shoot. We requested Shikha to walk from a brightly lit corridor and to walk into our relatively underlit studio. And we shot them using Aperture Priority Auto, followed up by the same sequence in Shutter Priority Auto, and then using the Auto ISO method. There are two additional adjustments that you have to do in your camera menu before you actually go out and shoot in the Auto ISO mode, for which you go into the menu, select the shooting menu, and go to ISO sensitivity setting and go into the Auto ISO sensitivity control and switch it on, below which you will get two controls. One is the maximum ISO that the camera can go during the shoot process. I'm going to select a safe one, which will minimize, if at all, if there are any grains and noise that comes in. Minimum shutter speed. This setting will help you to stay with a minimum of 1 by 1/25th of a second, which according to camera thumb rules is a safe one for a still photographer. Let me tell you, this menu will differ from manufacturer to manufacturer and model to model. What we tried to do was to simulate a typical scenario which a photographer can encounter in terms of difficult lighting situation. So the first shot, Aperture Priority mode. So I've selected 3.5 as my preferred aperture, and I'm shooting at 400 ISO. The first shot, relatively sharp. Then I come down, the shutter speed starts dancing here and there. Here at this one point, I see the shutter speed dropping to 1 by 60th of a second, and she's also walking, and it has resulted in a blurry image. Now let's move further. It's become 1 by 60, but there is a blur, but it's relatively less. Then, suddenly you see an increase in the shutter speed because there was some kick light which was coming from one side of the corridor. The shutter speed is 1 by 100th of a second, but still recorded some motion. The next one, surprisingly, though it is 1 by 60th of a second, I managed to freeze her motion. These things keep happening. So the next image is 1 by 60th of a second. You can see a blur in the image. Then the next one is 1 by 80th of a second. अभी ये जो वीडियो हम लोग शो कर रहे हैं ना सर, इसमें एक मेजर पॉइंट है जो निकॉन, कैनन हर एक कंपनी प्रोवाइड करती है कि मैंने अभी स्टडी किया, मेरा हायर द नंबर ऑफ आईएसओ मींस मेरे इमेज में बहुत ज़्यादा ग्रेन्स रहेंगे, बट देयर इज वन सेटिंग इन कैमरा वेयर आई कैन कंट्रोल कि मेरा मैक्सिमम जो है, अगर मैं ऑटो मोड पे भी रखता हूँ तो मैक्सिमम मेरा आईएसओ इससे ज़्यादा जंप नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो एक पर्टिकुलर सेटिंग था उस सेटिंग में मुझे आईएसओ बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, तो मैंने कैमरा को एक बता दिया कि भाई मैं किसी भी सिचुएशन में सेटिंग में अगर क्लिक कर रहा हूँ तो तू 400 से बियॉन्ड मत जा। मतलब मैंने कैमरा को एक कमांड दिया, मैंने पॉइंट सिलेक्ट कर दिया 400 विल बी माय मैक्सिमम आईएसओ। तो मैं अगर लो लाइट सिचुएशन में भी जा रहा हूँ सो माय कैमरा विल कीप ओनली 400। अगर मैं ब्राइटर में जा रहा हूँ तो कैमरा मेरा ऑटोमेटिक लेस पे जंप कर लेगा। मतलब मैंने कैमरा का एक लिमिट बांध दिया। वहां पर
हम लोग निकॉन के कैमरा में कर सकते हैं, कैनन के कैमरा में भी अवेलेबल है, लेकिन कैनन के कैमरा में क्या एक स्लैब है लाइक 6400 एंड देन वन इज योर 12800। तो यहाँ पर कैसे 400 इन्होंने किया था, तो 400 आपका आईएसओ सेम रहेगा। अभी जहाँ पे उन्होंने अपर्चर मोड यूज किया है, तो अपर्चर मोड में आपका अपर्चर एक फिक्स रखा उन्होंने 3.5। सो नाउ द शटर व्हेन द मॉडल इज कमिंग, तो उनका मोमेंट हो रहा है एंड दैट्स द रीजन एट डिफरेंट स्टेजेस कैमरा इज स्विचिंग इन हिज शटर स्पीड। तो कैमरा क्या कर रहा है, अपर्चर उतना ही रखा। मेरा अगर अपर्चर मोड है तो अपर्चर मोड पे मेरा अपर्चर सेम रहेगा, मेरा जो शटर है शटर ऑटोमेटिकली कैमरा चेंज करते जाएगा। तो कहीं पे कैमरा बहुत ज्यादा शटर ले रहा है 1/100 ले रहा है, कहीं पर 1/60th ले रहा है, 1/80th ले रहा है, डिपेंडिंग अपॉन इन एवरी सिचुएशन वेयर द लाइट इज कमिंग और लाइट इज गेटिंग मच ब्राइटर, द इमेज इज गेटिंग मच डार्कर अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये हम लोग एक बार और कंप्लीट देख लेंगे। The shutter speed, but still there was a little motion. Mind you, the aperture is still the same, ISO is still the same. The shutter speed keep dancing, right? Now, light started dropping as soon as she started entering into the studio. Obviously, the light dropped drastically. Now, shutter speed is 1/60th because of the bright backlight. She got underexposed, but still there is movement. At 1/30th of a second, let's go back and show the full frame for you. She appears to be sharp, but I have some motion in her arms, hair, etc. The next frame, now the shutter speed has started dropping, 1/13th of a second, and a very exaggerated motion. Okay, 0.1 second. Obviously, you're not going to have. Oh, it's almost complete blur, almost like a motion blur. Blurred again, completely in a blur. It's 1/13th of a second, and she's also sitting down. And then here she is. She's sat down. She's resting, but the image is still in a blur. Let's look at what happens when we go to the shutter priority auto. Okay, she's back in her position number 1. I have kept the shutter speed as 1/125th of a second because that's what the thumb rule says. She's crisp and clear. That's fine. That's clear. Everything is crisp and clear. Clear again. Sharp image again. And now. अभी ये उन्होंने जो 1/125 रखा है, जब हमने शटर स्पीड का चैप्टर लर्न किया था वहां पर एक चार्ट था। तो जब मैं अगर नॉर्मल कोई पर्सन इज वॉकिंग, सो इन दैट टाइम माय शटर स्पीड विल बी लाइक 1/125 से लेकर 1/250 तक। तो ये अभी उनका नॉर्मल स्पीड है, दैट्स द रीजन द फोटोग्राफर हैज मेड हिज कैमरा ऑन 1/125 सेकंड ऑफ शटर स्पीड। अभी यहाँ पर अपर्चर उन्होंने कम रखा है 2.5 बिकॉज his camera is a full frame camera and against his lens it's allowing him to go beyond the 4। अभी आपके कैमरा में जो अपर्चर है वो 4 से नीचे नहीं जाएगा बिकॉज जो हमारा लेंस है, लेंस का एक लिमिट है। तो अगर मैं लेंस चेंज करता हूँ, मैं 50 mm लेंस यूज करता हूँ, तो मुझे 50 mm में जो अपर्चर है वो 1.8 तक, 1.2, 1.4 तक मिलता है। सो डिपेंडिंग अपॉन मैं किस सिचुएशन में शूट कर रहा हूँ, आई विल select my gear, that is the equipment where the lens is coming, your camera body is coming, and now you can see in shutter priority mode the image is too much in a sharp because हर बार मेरा कैमरा जो उसका मोशन है, मोशन को फ्रीज कर रहा है, उसका भले ही मोमेंट हो रहा है लेकिन मेरा कैमरा उस मोमेंट को कैप्चर कर रहा है। वही जब हम लोगों ने अपर्चर प्रायोरिटी मोड देखा तो कहीं कहीं पर कैमरा ने कैप्चर किया जब कैमरा ने 1/60th के लोअर शटर स्पीड आ गया, जैसे 1/60th के यहाँ पर 1/30th का हुआ है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर 1/60th है, तो 1/60th जैसे हम लोगों ने सीखा, अगर मैं हैंडहेल्ड शूट कर रहा हूँ तो मेरा थोड़ा सा ब्लर टाइप आएगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पे उसके जो बाल वगैरह है, सो दैट हेयर इज कमिंग लाइक समथिंग लिटिल बिट मोशन इन द इमेज, इट इज नॉट दैट मच क्लियर एंड शार्प एज कम्पेयर टू शटर प्रायोरिटी मोड। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि व्हेन आई एम शूटिंग, I'm handheld camera I'm using, so that time my shutter speed and my ISO and my aperture will be in a such a way that I will get a proper sharp image। तो वो तीनों की सेटिंग बैलेंस करना जरूरी है। वो बैलेंस को कहते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर।
ओके Okay. सो आज अभी हम लोग जो है वो इसको कंटिन्यू करते हैं लाइक हियर ISO या we are talking about here 1/25th of a second, mind you. So it has ruled out the shake to a great extent, a camera shake to a great extent. But what will happen is the camera will run out of aperture opening. At this point, camera has hit 2.5, 1.4, which is the maximum possible opening for that particular lens that I was working with. And you can see that the camera is stuck, it cannot open anymore, thereby it started underexposing for that particular reading. So you have an underexposed image. Now we saw how shutter priority auto works and how aperture priority auto works. And now let's see how auto ISO setting works. Let's look at the images now. The shutter speed is 1/125th of a second so that I can freeze her, and f4 because it's a good aperture I thought to work with. And second frame, third one, you actually don't see any exposure change. All images, they look more or less very similar in terms of sharpness, depth, and the whole feel of the image is very similar. I mean, you can see it yourself. Now she's entering, still the exposure is, she's entering the room. That's where the light is at the lowest, but still she's exposed very well. The background is exposed properly. The image is sharp enough. Now you can see her face. She's entered the studio and she is sharp, clear. In the previous situation, these images were either underlit or shaky. Now she is crisp and clear. Very simple. A still photographer can get away with these kind of situations even if he is working with aperture priority or shutter priority auto, if he is fast enough to kind of switch the ISO. But it's not so for a videographer. Someone who's using a DSLR in this kind of situations, if he encounters these kind of drastic change in the lighting conditions, he's going to be in real soup. Let me show it to you. We're going to now shoot with a fixed ISO for the light outside. The image is stabilized, everything is fine and okay. And she's moving, everything is all right till now, and she enters into the room and you start losing light. The camera has not readjusted itself to compensate for the loss of light inside. Now, the same situation with the auto ISO setting. Shutter speed and the aperture is selected, camera is in auto ISO mode. Now, action. She's walking towards the camera now, and everything is clean, clear. Now, as she enters into the room, quite contrary to what happened in the previous situation, the camera started adjusting the brightness levels on its own very seamlessly. You can't even figure out when the camera switched the ISO. It happened so seamlessly, like I said. So this is actually a blessing for a videographer. So, सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मैं बहुत ज्यादा फास्ट काम कर रहा हूँ, इवेंट्स हो गए, वेडिंग्स हो गए या फिर स्पोर्ट फोटोग्राफी वगैरह, तो मैं क्या करूंगा, मुझे मैनुअली हर बार इमेज क्लिक करने के लिए जब मैं जा रहा हूँ तब ISO सेटिंग तो चेंज नहीं कर पाऊंगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेल द कैमरा कि मेरा ऑटो ISO मोड पे रखो कैमरा, एंड कैमरा व्हाट विल कैमरा विल फंक्शन लाइक, मैं अगर शटर स्पीड कम वगैरह कर रहा हूँ तो अगेन ही विल कॉम्पनसेट द लाइट. तो वो एक होता है ऑटो ISO फंक्शन. कई बार हमें वो पॉसिबल है जहाँ पर हम लोग फास्ट शूट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहा हूँ, जैसे नाइट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास वक्त है. सो आई कैन पुट द कैमरा ऑन अ मैनुअल मोड. मैं कैमरा का ISO है वो प्रॉपरली डिसाइड कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इमेज लूंगा. सो वेयर यू हैव अ सिचुएशन लाइक ना,
रन एंड गन सिचुएशन, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कैमरा को एक मोड पे डालना पड़ेगा विच इज एन ऑटो आईएसओ। और अगर मेरे पास वक्त है, मैं इमेज क्लिक कर रहा हूँ लाइक अ प्रोडक्ट फोटोग्राफी, तो प्रोडक्ट का जब मैं कोई इमेज शूट करता हूँ, सो आई हैव अ टाइम, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू यूज मल्टीपल सेटिंग, सॉरी डिफरेंट सेटिंग एट ईच टाइम। तो मैं एक इमेज लूंगा, उसमें मैंने आईएसओ वगैरह प्रॉपर सेट कर दिया। अभी मेरा लाइटिंग सिचुएशन चेंज नहीं हो रहा है, जैसे स्टूडियो लाइट है, स्टूडियो लाइट में मैं पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूँ किसी मॉडल का, तो वहां पर मेरा लाइटिंग सिचुएशन सेम रहेगा। सो एक बार मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मेरा यहाँ पर ये सेटिंग रहेगा, आईएसओ मुझे 200 पे रखना है, 400 पे रखना है, तो मैं 400 पे लॉक कर दूंगा। और मैं उसके बाद शटर स्पीड जो है, शटर प्रायोरिटी मोड पे क्लिक करूँ या फिर मैं ऑटो प्रायोरिटी सॉरी अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे क्लिक करूँ, मेरा फाइनल रिजल्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट मेरा प्रॉपर शो करेगा। तो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक, आईएसओ मींस सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर टू द लाइट, जितना मेरा आईएसओ कम है दैट माय इमेज विल बी लाइक शार्प, if my ISO is increasing so automatically the image will have a grain, वो हमने देखा। Now there is another function in the camera which allows you to compensate the light, that to control the ISO which is a auto ISO। तो वो अभी होमवर्क रहेगा, मैं आपको अभी जैसे लेक्चर के एंड में होमवर्क भी दूंगा आईएसओ को किस तरीके से करना है। तो ये वीडियो में हमें बता रहा था कि मुझे आईएसओ कब कैसे रखना है, राइट। नाउ वी विल स्टडी अ चार्ट, जैसे हमने शटर का चार्ट देखा, हमने अपर्चर का चार्ट देखा, सो वी विल गो विद द चार्ट कि अगर मेरा शटर और आईएसओ मुझे रखना है तो कितना मैं रख सकता हूँ। जैसे इसमें आईएसओ नहीं है, ये एक आईएसओ सेटिंग का चार्ट है जो हमें हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेरा कैमरा जिस मोड पे मैं रख रहा हूँ उस मोड पे मुझे आईएसओ कितना रखना है। लाइक हियर, सो हियर वी विल कम टू नो अपर्चर आल्सो, शटर आल्सो और आईएसओ। तो मैं सिर्फ आईएसओ के ऊपर ध्यान में रखता हूँ। तो इस केस में जब मेरा आईएसओ बहुत कम है, 50 है, तो मेरा इमेज पूरा शार्प शो कर रहा है। जैसे मैं इंक्रीज करते जा रहा हूँ, मेरा इमेज में डिटेलिंग जो है वो कम होते जा रहा है, विच इज कॉल्ड एज अ हाई सेंसिटिविटी। लाइक सेम अपर्चर, जब मेरा अपर्चर बहुत ज्यादा है तब मेरा सब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड इज टोटली इन अ शार्प। as soon as I will go ahead, I will reduce the aperture size, so my background will be too much blur। तो इस एक सिचुएशन, एक चार्ट को अगर हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं, so I will be able to understand the aperture also, the shutter speed also and the ISO। तो तीनों सेटिंग्स मुझे कब कैसे रखने हैं। लाइक इन आइडियल सिचुएशन इफ आई वांट टू टेल यू, अगर मैं डे लाइट में शूट कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं डायरेक्ट सनलाइट में शूट कर रहा हूँ, so my aperture I will try to keep minimum as it is possible, right। कुछ कैमराज जो है जिसमें 50 अलाउ करता है, जो फुल फ्रेम कैमराज वगैरह है, बट इन आवर क्रॉप सेंसर बॉडी द कैमरा विच यू हैव, इट विल अलाउ यू टू डिक्रीज अप टू 100। तो मिनिमम मेरा कितना हो गया, 100। सो अब मैं ट्राई करूंगा कि जब मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, डे लाइट में शूट कर रहा हूँ, सो आई विल कीप माई आईएसओ ऑन 100 ओनली। आफ्टर दैट इफ आई एम शूटिंग इन इंडोर टाइप, तो जब इंडोर टाइप में मैं शूट कर रहा हूँ, सो दैट टाइम आई विल ट्राई टू कीप माई आईएसओ अप टू 400 और 800। मैं 400 और 800 तक मेरा आईएसओ जो वो रखने की कोशिश करूंगा। अगर वहां पर भी मुझे लाइट ज्यादा आ रहा है, देन माय आईएसओ इज 800, सो व्हाट आई विल डू कि 800 में मेरा इंडोर में लाइट आ रहा है लेकिन वो कम रहेगा लाइट, तो उतना मैं ट्राई करूंगा। उसके बाद अगर मेरा और ज्यादा मुझे लाइट कम दिखाई दे रहा है, मेरा लाइट सिचुएशन है उसमें लाइट और ज्यादा कम आ रहा है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू इंक्रीज द आईएसओ। लेकिन साइमल्टेनियसली मैं ट्राई करूंगा कि मुझे और एक कुछ एक्सटर्नल लाइट जो सोर्स है वो मुझे ट्राई हो जाए, तो वो मैं ट्राई करूंगा। सेम मेरी शटर स्पीड के इसमें, तो शटर स्पीड जब मेरा एकदम ज्यादा रहेगा, आई विल बी एबल टू दैट I will be able to keep the sharper image and I will be able to shot that motion, तो मैं motion freeze कर पाऊंगा। As soon as I will go lower the shutter speed, so my image will get blur kind of thing because my subject is moving, and when I have a particular combination like aperture, shutter और मेरा ISO, तो तीनों मेरे जब ध्यान में रख पाऊंगा मैं, तो मुझे एक प्रॉपर इमेज मिलेगा जिसमें मेरा बैलेंस है, मेरा ग्रेन्स नहीं है, मेरे लाइट भी जितनी रिक्वायर है उतनी ही अवेलेबल है, ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है। वो हमें ध्यान में रखना है।
तो ये इमेज मैं आपको एक व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, सो इट विल अलाउ यू टू अंडरस्टैंड एवरी टाइम एंड व्हेनेवर इट इज पॉसिबल फॉर यू सर, जस्ट ट्राई टू लुक दिस इमेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो आप जब ये सारी चीजें है ना, इनको हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे. ओके, दिस इज द इमेज I have already forwarded you. So which is called as a camera shutter speed and aperture chart. If you Google it also, you will get the exact chart. And sometimes there is another like here. So how to understand the camera ISO? So like my camera, I'm shooting in a daylight sun, that is a direct sun. So yeah, so my ISO will be 50 to 100. जैसे मैंने आपको बताया, मुझे ISO 50 से लेकर 100 तक रखना है. अगर मेरा ISO में एकदम ब्राइट सन में जा रहा है, लो ब्राइट है, मतलब वेरी ब्राइट सिचुएशन है, लेकिन वहां पर लाइट जो है वो कम रखना है. लाइट थोड़ा पर है, शेड में शूट कर रहा हूँ, थोड़ा शेड है, डे लाइट है लेकिन शेड है, तो वहां पर मुझे अगर कहीं पर लग रहा है कि लाइट थोड़ा कम आ रहा है बिकॉज ऑफ द शेड, सो आई विल जंप टू अप टू 200. उसके बाद अगर मेरा मॉडरेटली ब्राइट सेटिंग है और मुझे जो लाइट सेंसर है वो बहुत ज्यादा हाई है, so I will go ahead and 400 to 1600 will be my ISO. So मेरा क्या होगा, वहाँ पर डार्कर इमेज शो कर रहा है. मैं अगर लाइट में हूँ लेकिन मेरे पास बहुत कम लाइट अवेलेबल है, लाइक जैसे उस मॉडल ने एंटर किया उस रूम के अंदर, तो वहाँ पर उसका लाइट बहुत कम था. दैट्स द रीजन आई हैव टू इंक्रीज द ISO. और एक्सट्रीमली हाई जब मेरे पास कुछ भी लाइट नहीं है, जैसे डिमली लिट सिचुएशन है, सो माय ISO विल बी लाइक 1600 to 6400, which we try to use in a night photography. लेकिन नाइट फोटोग्राफी में भी मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा मेरा मिनिमम ISO में कितना रख सकूँ. सो इन नाइट इफ आई एम शूटिंग, आई विल ट्राई टू कीप माय ISO अप टू 800 और मैक्सिमम इन द केस और 1600. बियॉन्ड दैट 1600 इफ आई गो, सो आई विल गेट द ग्रेन इमेज. सो व्हाट आई विल डू, मेरा एक लॉक लगा दूंगा मैं, जैसे कैमरा के सेटिंग्स में मेरा मैक्सिमम ISO मेरा 800 या 1000 तक हो, और बाकी जो लिमिटेशन है वो मैं शटर स्पीड और अपर्चर से कॉम्पनसेट करने के लिए ट्राई करूंगा. तो वो हम लोग ध्यान में रखेंगे. तो नाउ आज हमने क्या सीखा कि पहले one question. Yes sir. One question. Now in a given situation, okay, in a given situation, suppose as you said that if it is dimly lit or lightly lit or whatever it is, I know I have kept the ISO, but still there is blurriness in the picture. Okay. That time, which is the first one I start, aperture or shutter speed or ISO? Right. Which is the one I try to adjust first? Right. So in that case, if you have a lens which is having minimum aperture, so अगर आपके पास 50 mm का लेंस है जिसका मिनिमम अपर्चर 1.4 है, तो आप पहले अपर्चर ट्राई कीजिए कि अपर्चर कितना मिनिमम कर सकते हो. एक बार आपका मिनिमम हो गया, अभी उससे कम आप जा नहीं सकते. सो नाउ यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज अ शटर स्पीड. So whichever lens I have base minimum, I'll keep the aperture. Exactly. But again there is a one more thing which we need to keep in mind, कि जितना मैं अपर्चर मेरा कम करूंगा, I will make a blur kind of image in a background and foreground will be sharp. Yes. तो हमने देखा था, अगर मैं पोर्ट्रेट इमेज शूट कर रहा हूँ, so what I will do, पोर्ट्रेट में मेरा बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो जाएगा, मेरा जैसे मैं अपर्चर कम करूंगा, और मेरा शार्प जो है वो पूरा मॉडल शार्प दिखाई देगा, बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो जाएगा. तो वो हमें ध्यान में रखना है. इफ योर अपर्चर इज सेटल, कि अपर्चर अभी इससे मेरा कम नहीं हो सकता, सो आई विल ट्राई टू रिड्यूस द शटर स्पीड. बिकॉज अगर मैं शटर स्पीड कम कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो बट ऑब्वियसली मेरा शेकिंग भी होगा और मेरा इमेज भी ब्लर होगा. लेकिन मैं पहले ट्राई करूंगा कि मेरा अपर्चर जो है वो कम करने की कोशिश करूं, उसके बाद मेरा शटर स्पीड जो वो सेटिंग्स में ट्राई करूं कि उसको मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ या नहीं. वो हमें ध्यान में रखना है. राइट. तो अभी जब तक हम लोग सीखा, इसमें कुछ डाउट है सर आपको रिलेटेड टू द ISO? No. See, suppose you are in a situation where you don't have time to experiment. Right. Because the object could be moving, the situation could be not in your control. If you bring somebody to a studio, you can say stand here, stand there and shoot. Exactly. But if you are shooting a live situation,
you don't have time to adjust all these, correct? Right. So What will you do at that? that's the reason we understood the auto ISO method. Auto ISO, you have to Auto put. ISO. So in that situation where I don't have a time to experiment in each image, so because my Yes. entire situation is too much fast, so what I will do, I will just lock my camera up to one ISO, which is called as an auto ISO, and after that auto ISO system, what will happen is I am going in darker shade, that is dark area where I'm shooting. If I go in a brighter area where the light is too much and where I'm shooting, my ISO will be remain the same. My camera will automatically take all the elements and he will try to compensate the ISO using minimum which is possible. तो आपका कैमरा खुद डिसाइड करेगा ऑटो आईएसओ में. ऑटो आईएसओ में मैं एक लॉग द मतलब जैसे सेटिंग कर दूंगा कैमरा के अंदर कि मेरा इतना आईएसओ मैक्सिमम रखना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है. तो कैमरा क्या करेगा, अगर मैं डार्कर सिचुएशन में जाता हूँ जहाँ पर मेरा मतलब लाइट कुछ भी नहीं अवेलेबल है और मैंने मेरा कैमरा 400 आईएसओ पे लॉक किया है, तो कैमरा विल गो अप टू 400, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा. और अगर मैं कैमरा को लॉक नहीं लगाता हूँ, मतलब जो सेटिंग ऑटो आईएसओ नहीं रखता हूँ, सो व्हाट विल हैपन, इट कैन गो अप टू 3400 और 5600, बट मेरा इमेज जो है इमेज प्रॉपर शो करेगा, उसमें ग्रेन्स नहीं होंगे. सो आई विल अगेन प्ले द वीडियो टू अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट इज एग्जैक्टली ऑटो आईएसओ. तो वी विल गेट कि मुझे प्रॉब्लम अगर आता है जहाँ पर मैं एकदम फास्ट शूट कर रहा हूँ, जैसे कोई भी सिचुएशन जहाँ पर फास्ट शूट कर रहा हूँ, तो मुझे किस मोड पे रखना है कैमरा. That I understood. In fact, the doubt where I have is, suppose if it is a still image, I mean the object is stationary. Okay. Then I feel shutter speed has and the light condition is say good, decent enough. Then only aperture I have to try. Right. Shutter speed does not have much role. So in the same situation, if it is a moving object, then I must fix the aperture and try adjusting the shutter speed. Exactly. Correct. Suppose if the light is dim and the object is moving. Right. See, we have to think like that only, you know. In the night somewhere I am moving something object, but the light is also dim. Then I must select auto ISO. Correct. Exactly, auto ISO. Because we don't know the light condition. Exactly. Because no point in if the light is less, you keep the aperture low so that you expose the light more on the sensor. More. Okay. Shutter speed, if it is stationary, it has not much of an effect, as I understood. If it is a moving object, I must try different shutter speed if I want a still image or a moving object as it is. Correct. Exactly. But जब आप शटर स्टेशनरी शूट कर रहे हो, when you are shooting a still image and you want entire area in a sharp, तो मेरा अपर्चर वहाँ पे ज्यादा रहेगा, बिकॉज हमने किया था कि जब अपर्चर लेवल ज्यादा होता है तो कैमरा क्या करेगा, पूरा एंटायर एरिया शार्पनेस में होगा. मेरा अपर्चर जब मैं कम करूंगा तो मेरा वो foreground or background वाला image show करेगा. Yes. Even that matters whether I want to get the object in a perfect condition or the background also I need to have for some reason. I have kept a flower or something like that. I want the flower to be seen also. Then I have to compromise between the object. Right. So what I will do in that case, I will try कि अगर मैं शटर स्पीड कम कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा अपर्चर तो फिक्स मैंने रख दिया क्योंकि मुझे सारा का सारा एरिया शार्पनेस में चाहिए. मेरा आईएसओ भी मैंने फिक्स कर दिया कि आईएसओ जो है मेरा वो मैंने एक पर्टिकुलर लेवल पे सेट कर दिया, बिकॉज लाइटिंग सिचुएशन इज द सेम. बट अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही मेरे पास ऑप्शन है जो आपका है शटर स्पीड. तो शटर स्पीड मुझे ट्राई करना है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है स्टिल है, तो मैं लोअर शटर स्पीड ट्राई करूं. लोअर शटर स्पीड की वजह से क्या होगा, लाइट ज्यादा आएगा एंड साइमल्टेनियसली मैं शूट भी कर पाऊंगा. बट अगेन I have to keep on a tripod, क्योंकि लोअर शटर स्पीड अगर कर रहा हूँ तो इमेज ब्लर हो जाएगा. राइट. ये हमने आज थोड़ा लॉजिक. And if I cannot keep, I have to be careful. You know, if for some reason I cannot keep the camera on a fixed place. Exactly. Then तो blur तो आएगा.
ब्लर आएगा. सो आई विल ट्राई कि कितना मैं उसको कॉम्पनसेट कर सकता हूँ, या फिर आई विल ट्राई कि मैं कुछ एक्सटर्नल लाइट उसमें फिलअप करूँ. जैसे हम लोग कोई स्टेशनरी वगैरह लगते हैं, अगर लाइट बहुत ही कम है और मेरे तीनों सेटिंग्स, Then I have to keep the aperture low, na? Because at least the background will not come. my foreground will be in a sharp Only light. foreground will be better. Like Exactly. that, I have to choose on the image I want to capture anyway. Exactly. Okay. मेरा फाइनल इमेज मुझे कैसे चाहिए, एज पर दैट Hmm. सिचुएशन ओनली आई विल कीप एंटायर सेटिंग, जहाँ पर मुझे सब कुछ चाहिए. और मैं अगर उसमें कुछ एक्सटर्नल मतलब जितना लाइट अवेलेबल है उसमें मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, सो बट ऑब्वियस आई हैव टू इंट्रोड्यूस द आर्टिफिशियल लाइट इन द एंटायर फ्रेम. तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं कुछ आर्टिफिशियल लाइट फिलअप करूँ, जिसकी वजह से मेरा जो आईएसओ है मैं आईएसओ कम को रख पाऊंगा, मेरा शटर स्पीड जो है उसको मैं प्रॉपर रख पाऊंगा, बिकॉज आई एम शूटिंग अ हैंड हेल्ड इमेज. एंड मेरा जो अपर्चर है, अपर्चर ऑल्सो आई विल कीप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जहाँ पर मेरा मुझे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्लर चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा मुझे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों शार्प चाहिए, तो वो हमें ध्यान में रखना है. तो Correct. If क्या the हमें, object is very far, my हाँ, flash doesn't work. yes, exactly. So in that case, what I have only one choice, that shutter speed. So Yeah, that's the correct. reason where you are shooting, you should have all the equipments like tripod is there, external flash is there, and in landscape photography, we have to shoot on natural light. So natural Yes, light yes. में जहाँ पर कर रहा हूँ वहाँ पर मैं artificial कुछ नहीं कर सकता. But Correct. in a studio, I have the flexibility which I can introduce the artificial light and I can compensate Yes. the settings. वो एक मेरे पास flexibility होता है, right sir? तो Yeah. अभी और कुछ सवाल वगैरह है, और कुछ डाउट है आपको आईएसओ से? That is why in the studio they close everything, make it dark, and put a fixed Right. amount of light on the subject or the object, That's so the, that they know what is the light coming. exactly. Whether they want to turn on one or two or three, depending on that, they will turn on the लाइट flash. इंटेंसिटी, तो फ्लैश का External भी lighting. राइट, एक्सटर्नल लाइटिंग का भी इंटेंसिटी होता है 100 200 400 पे, उसका माइनस पे भी होता है. जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसी सिचुएशन में जहाँ पर ये पर्सन हमें एक्सप्लेन कर रहा है, सो द बैकग्राउंड इज लाइक थोड़ा ग्रे कलर टाइप. तो वो क्यों Yeah. है? बिकॉज इफ इट इज अ वाइट, सो ऑटोमेटिकली दैट लाइट विल रिफ्लेक्ट एंड मेरे Correct. इमेज वो प्रॉपर शो नहीं करेगा. जो कलर कॉन्ट्रास्ट उन्होंने मैचअप किया है, दैट इज अगेन वी नीड टू अंडरस्टूड कि मेरा जो स्टूडियो लाइट होता है, स्टूडियो उसी तरीके से बनाया जाता है जहाँ पर मेरा एक्चुअल शूट हो रहा है, वहाँ पर आई विल ट्राई कि मेरा बैकग्राउंड जो व्हाइट रखना है, मुझे मॉडल शूट वगैरह जो भी करना है, जहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ, दैट बैकग्राउंड आई विल ट्राई टू कीप एज अ ब्लैक. लाइक इन दिस स्टूडियो always you will find that upper ceiling of the studio is colored as a black color and the side walls are painted as a white color, just because the light which is getting reflect on the ceiling, it will get absorbed, it will not get reflect in the that we can say it will not get reflect in the Vertical ground, direction. right? So that's the reason कि स्टूडियो में मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जहाँ पर मुझे शूट करना है, मुझे कौन सी लाइट कहाँ पर कितना उसको एक्सपोज करना है. अगेन मैं स्टूडियो लाइट्स में मैं डिफ्यूजर लगाता हूँ कई बार, उसका जो इंटेंसिटी है उसको और सॉफ्टनेस करने के लिए. तो स्टूडियो लाइटिंग का पूरा सिचुएशन. लेकिन जहाँ पर मुझे पॉसिबल होता है आउटडोर में, लाइक फंक्शंस वगैरह है, तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फ्लैश के भी कुछ अलग अलग टाइप्स है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं. फ्लैश में भी अलग अलग मैनुअल सेटिंग्स है, दैट वी विल स्टडी. बट आई विल ट्राई कि जितना मुझे पॉसिबल होता है तो मेरे कैमरा के सेटिंग के ऊपर ही खेलूँ, ताकि मुझे इमेज प्रॉपर आए. और अगर उसमें कहीं पर भी मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस आई हैव टू गो हेड एंड आई हैव टू फिल अप दैट एक्सटर्नल लाइट इनटू द सब्जेक्ट. वो एक हमें ध्यान में रखना है. ओके, तो आज का आपका जो होमवर्क है वो है कि आपको 100 पे मैनुअल सेटिंग पे जाना है. मैनुअल सेटिंग पे आपको आईएसओ 100 पे एक इमेज क्लिक करनी है, सेम सिचुएशन सेम डिस्टेंस पे सेम ऑब्जेक्ट. 200 पे क्लिक करना है, 400 पे, 800 पे. तो हमें पता चलेगा कि डिफरेंट जो मैनुअल सेटिंग्स है वहाँ पर मेरा आईएसओ कैसे चेंज हो रहा है और मुझे कितना ग्रेन इमेज मिलेगा, तो वो मुझे ध्यान में रखना है. लो लाइट में करने का है, ब्राइट लाइट में? लो लाइट में आप ट्राई कीजिए. लो लाइट में जैसे अभी आपका जो लो लाइट, हाँ, आपका विंडोज से भी कोई रात में थोड़ा कम हो जाने के कम हो जाने के बाद तो हमें ग्रेन्स जो है वो ग्रेन्स ज्यादा दिखाई देंगे. दैट इज रीजन आई एम टेलिंग यू. Now you can select any indoor subject like that chair or a flower pot or that Buddha statue, and then you can experiment these all particular stops of the ISO, and then we will result tomorrow we will discuss that entire result of the images.
ओके, Okay. तो Okay. ये हम लोग Okay. ध्यान में रखते हैं। एंड टुडे, आज का जो लेक्चर हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगेन आई विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस 2 लेक्चर्स लाइक यस्टरडे एंड टुडे। और इसमें कुछ डाउट वगैरह आता है तो एनी टाइम मुझे बताइएगा सर आप।